गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिंह साहिब जी ने जो हुक्मनामा श्रवण कराया, उस तो पहला बंदना दे बोल सन। कि कोई भी स्त्री अन्न छड़ दवे ते फिर अन्न छड़ के पखंड करना ते उसनों तशबी की दिती है, ना सुहागण ना ओह रंड। वो किसी जोगी भी नहीं है, सुहागण भी नहीं है ते रंड भी नहीं है। ये कितनी बड़ी गाल कढ़ी है। अक्सर आप जी चौराहे ते देखते हो कि कुछ ऐसे भी लोग ने जो ना स्त्री विच हन ना पुरुष विच हन, ते चौराहे ते खड़ के मंगते रहते हैं। ते एक बार मैं कह बैठा, आप जी नूं मंगण दी की लोड़ है। बस इतनी गल मैं आखी, उहदे अखां विच हंझू आ गए। कहण लगे, ज्ञानी जी तुसीं एक अरदास करो, सानू मंगण दी भी लोड़ ना पवे, साडी जीवन लीला ही खत्म हो जाए, चंगा। क्योंकि पता नहीं असी किहड़े कर्म कीते ने जो असी ना स्त्री ना पुरुष, कुछ भी नहीं। ये कोई जीवन थोड़े ही, ये हकीकत है। क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है। भाई साहब ने एक कबीर साहिब का श्लोक आप जी के सामने रखिया। कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओहोई राखे नार। ये ओही की है। कहते ने ये ओ देवी है जिन्हां दी सवारी खोती ते आउंदी है। कहते ने जिहड़ी स्त्री जिहड़ी औरत रब नूं छड्ड के निरंकार नूं छड्ड के वर्त रखदी होवे, कहते ने गद ही होई के उतरे भार सहे मन चार। कहते ने जिस देवी की आराधना वो करती पई है, उस देवी ने उसनों की देना है? वध तो वध अपने कोल रखना है, अपने कोल बिठाना है। और उस देवी की जो सवारी है खोती, वध तो वध उन्होंने खोती बना देना है। और की धन गुरु ग्रंथ साहिब के बोल असी रोज सुनते हाँ, रोज पढ़ते हाँ। पूजा वर्त तिलक इशनाना पुण्य दान बहुदैन, कबू न बीजे संजम स्वामी। बोले हैं मीठे बैन। कहते ने पूजा नाल वर्त नाल तिलक नाल रब कदे भी खुश नहीं होएगा, कदे खुश नहीं होएगा। और जो बाणी कहती है ये कम नहीं करना, गुस्ताखी माफ मनुख ओही करता पिया, ओही करता पिया। मनुख सुनता जरूर है, पर बाणी नूं अपने जीवन विच नहीं उतारता। इस करके मैं कई बार अर्ज करना, एक वो भी मनुख है जिहड़ा कदे भी गुरुद्वारे नहीं आया, और एक वो भी है जिहड़ा रोज गुरुद्वारे आंदा।
ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਤੁਰਿਆ, ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਪੱਛਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅੰਨ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਬੈਸੰਤਰ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਏ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਤਰਦੀ ਏ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਉਤਰਦੀ ਏ। ਔਰ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ? ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਛਾਪਾ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਨਹੀਂ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ। ਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪਤੀ ਜਿਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਤਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਰਵੇ ਪਰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗਾੜਾਂ ਕੱਢਦੀ ਰਵੇ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਗਾੜਾਂ ਕੱਢਦੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਵ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਛਿਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਰੋਗਾ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
कि गुरु नानक साहिब का जो बगीचा है, उस बगीचे नूं, गुस्ताखी माफ, हर जिन्हों समझना, इस बगीचे नूं किसी हिंदुओं ने खराब नहीं किया, किसी मुसलमानों ने खराब नहीं किया। इस बगीचे नूं जे किधरे विगाड़िया है तो कहते ने तथा कथित सिख, जिहड़े सिख हन नहीं, तथा कथित, बस पगड़ी बनी हुई है, केस रखे हुए ने, पर कहते ने ना वो आप बाणी पढ़ते ने, ना उन्होंने बच्चे बाणी पढ़ते ने। कहते ने जदों तुसीं खुद ही बाणी ते पहरा नहीं देंदे पे हो तो खिमा करना, गुरु नानक दा बगीचा तुसीं हरा भरा किवें रखोगे? नहीं रख सकते। इस करके कोशिश ये करो कि आप भी गुरबाणी नाल जुड़ो, अपने बच्चों को भी गुरबाणी नाल जोड़ो। ये सब तो वड्डी गल आप जी दे मैं सामने रखा, फिर मैं मूल शब्द ते आना। और ये भी गल मैनू कहन देना, पिता पूरन गुरसिख है, पिता पूरन गुरसिख है। पुत्र ने केस कटाए हुए ने, दाढ़ी कटी हुई है, वाल कटाए हुए ने, फिर गाहां पुत्र दा पुत्र है, वो तो बिल्कुल ही सीमा भी लंघ गई। तो केवल ते केवल एक बंदे तक ही सीमित रह गई सिक्खी, बाकी दे बच्चे पता नहीं किधर दे किधर निकल गए ने। पर कहते ने श्री कृष्ण महाराज ने कहा सी अर्जुन, अर्जुन एक वक्त ऐसा आएगा, सामने तुसी देखते पे हो गऊ अपने वछेरे नूं चटदी पई है, और इतना चटदी पई है कि उहदे स्किन विचों खून निकल रहा है, पर फिर भी चटदी जा रही, और अखीरी विच वो वछेरा डिग पैंदा है। कहते ने एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग अपने बच्चियों नूं इतना मोह करनगे, इतना मोह करनगे कि जे किधरे बच्चे ने कोई गलती भी की होगी, माँ बाप दे कोल हिम्मत नहीं होगी कहने की। क्योंकि मैं कई बार देखना लोग कह देंगे ने ज्ञानी जी इको ही पुत्र है, हुण की करिए। मजबूरन मैनू कहना पै जाता है, इको ही पुत्र है, थोड़े सामने सिगरेट पींदा पिया है, कुछ भी नहीं कहोगे। सिक्खी तो बाहर जा रही है, कुछ भी नहीं कहोगे। केस कतल करा के आ रही है, कुछ भी नहीं कहोगे। कहने लगे ज्ञानी जी डर लगता है किधरे गलत कदम न तक चक लगे। इस तो वड्डा गलत कदम की होवेगा कि जो सिक्खी तो ही बाहर चला गया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं एक सिख ने आके बेनती की, महाराज मेरे ते रहमत करो, मैं भी आप जी दा सिख हाँ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पुछते ने निशानी की है सिख दी? मैं मनदा तो सिख है, निशानी की है? ते वो सिख कहता है महाराज मैं खंडे बाटे दा अमृत छकिया है, मैं नितनेमी हाँ, गुरु ते यकीन है, भरोसा है। कहने लगे ये सारिया निशानियां चंगियां हैं, बहुत चंगिया ने, लेकिन ऐसी निशानी दस मैनू जो मेरे दिल नू छू जावे, ऐसी निशानी दस। ते उसने निशानी की दसी? कहने लगे महाराज मेरे सिर ते हथ रखना, मेरे होने वाले बच्चे पोतरे पड़पोतरे दोतरे सारे दे सारे पूरन गुरसिख होणगे, इतनी रहमत रखना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे ये निशानी वाकई मैनू छू गई है, छू गई। ये दात मंगिया करो पातशाह, सिक्खी साडे घर विच ही रवे, सिक्खी साडे घर चों बाहर ना जावे, ये अरदास करिया करो। रहिंदी दुनिया तक सिक्खी साडे घर विच रवे, ये जरूर अरदास करिया करो। अज दा जो मूल हुक्मनामा आप जी ने सुनिया,
ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਜर्रे जर्रे ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਤਰਫ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਹਰ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਨ, ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਸੰਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਾਇਆ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਭਾਗ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਭਾਗ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਤਰੇ ਸਭ ਕੁਟੁੰਬ ਤਰਾਈ, ਸਭ ਕੁਟੁੰਬ ਤਰਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਕਥਾਵਾਚਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੂੰ, ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਜੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ? ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੁਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾ, ਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਲੇਪ, ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਛਿਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਾਪ ਓਮ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਹਨ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ,
जैन मुनियां दे सामने। पर मैं अपने अंदरों ये गल मैं जरूर कह सकता हाँ कि मैनू 3 मंत्र बड़े प्यारे लगे ने। सीधी चोट मारी, सीधी। किहड़े किहड़े शब्द? एक ओम, थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल सुनना। ओम दे विच जिहड़े 3 अखर हन, ए ऊ मैं ओम। ते सनातनी जदों ओम का उचारण करते हैं, साडे वांगू नहीं करते छेती छेती वाहिगुरू वाहिगुरू, जिवें भजी जा रहे हैं, गुस्ताखी माफ भजी जा रहे हैं। इन्हूं सिमरन नहीं कहते, गुस्ताखी माफ। असीं करते हैं छेती 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 छेती। सिमरन और जो साधना है, सहज सहज गुण रमे कबीरा, सहज सहज। तो जदों ये उचारण करते हैं ओम बड़े प्यार नाल, तो ये जो एड़ा है, ये सीधा ही चोट मारता है मस्तिष्क नूं। जो ऊ अखर है, ये सीधी चोट मारता है हिरदे नूं। और जो मैं दी ध्वनि है, ये सीधी चोट मारती है नाभि नूं, ध्वनि। ये 3 स्थान ने, दिमाग, हिरदा, ध्वनि, नाभि। अभ्यासी पुरुष जदों वाहिगुरु का उचारण करते हैं, एक ओंकार का उचारण करते हैं, तो इतनी सहजता दे नाल कि एक ओंकार भी मस्तिष्क नूं चोट मारदा, हिरदे नूं चोट मारदा है, नाभि नूं चोट मारदा है। और कोई उचारण करता है अल्लाह हो अकबर, मस्तिष्क नूं चोट मारदा है अल्लाह हो, हिरदे नूं चोट लगती है अकबर, नाभि नूं चोट लगती है। तिन्हां ते चोट लगती है, तिन्हां ते। जपिया होया वाहिगुरू भी तिन्हां ते चोट मारता है। हुण एक थोड़ा जिहा विचार इसनूं बरीक बुद्धि नाल समझना। जदों बच्चा मात गर्भ विच है, 9 महीने तक माँ दे भोजन तो, माँ दे शरीर तो भोजन लैंदा है, माँ दे शरीर तो ही साह लैंदा है, नाभि नाल जुड़िया होया है। एक केंद्र है प्राणा दा। और जे मैं इस तरह अर्ज करा, साडे शरीर विच आत्मा कित्थे है, ते दानसबंद कहंदे ने नाभि नाल जुड़े हुई आत्मा। बाकी तो वो जर्रे जर्रे विच समाई हुई है, रोम रोम विच। पर नाभि नाल बच्चा जुड़िया होया है। ये मरकज है विद्युत दा, ऊर्जा दा। आप जी नूं कहा जाए जे बच्चा 4 महीने का जन्म लवे, आप जी ने जवाब देना ज्ञानी जी 4 महीने का बच्चा बच्चा नहीं होगा, वो तो मरिया होगा। 6 महीने का बच्चा वो भी मरिया होगा। 9 महीने का बच्चा जदों अपने आप ओदा जन्म होवे 9 महीने बाद, जदों कि गुरबाणी तो कहती है 10 मासी बालक जन्म ले। 9 महीने पूरे गुजर जाते हैं, 10वां शुरू होता है, भावें 1 दिन भावें 2 दिन, कहते हैं ये बच्चा पूर्ण है, अपने आप जन्म होया था। जदों इसका जन्म होया ते नाला कटिया जाता है जो नाभि नाल जुड़िया हुआ होता है। जिवें ही वो नाला कटिया जाता है, बच्चा रोंदा है। क्यों रोंदा है? क्योंकि बच्चा जिस समाधि विच सी माँ के पेट विच, वो समाधि हुण खत्म हो गई है। माँ के पेट विच बच्चा कदे नहीं रोएगा, समाधि विच है। और जिवें ही वो नाला कटिया गया, उसकी समाधि खत्म हो गई, समाधि खत्म हो गई। और उस उम्र तो लैके फिर बुढ़ेपे तक वो समाधि लभदा है। समाधि उसनों वो नहीं लभदी जो मात गर्भ विच सी, वो नहीं मिलती उसनों। सारी जिंदगी भजदा ही रहता है, भजदा ही रहता है। एक होर गल मैं आप जी नूं अज करा। बच्चे नूं जो विद्युत मिल रही सी,
माँ की नाभि तो वो नाला कट्टिया गया। हुण उस बच्चे नूं विद्युत कित्थों मिलेगी, ऊर्जा कित्थों मिलेगी, हिरदा उहदा किस तरह धड़केगा, हरकत किस तरह चलेगी। तो डॉक्टर की करते हैं, बच्चे नूं फिर पुट्ठा लटका के ते कुछ उसनूं थपेड़ा मारते हैं। और पुट्ठा इसे करके किया है कि फिर उस बच्चे नूं याद आ जाए 9 महीने की समाधि माँ के घर में पुट्ठा लटकिया। फिर वो जो ऊर्जा माँ तो मिल रही सी, नाभि तो मिल रही सी, वो जिवें ही नाला कटिया तो फिर उस बच्चे नूं माँ अपने सीने नाल लगांदी है। फिर माँ जदों दुध पिलांदी है तो फिर ऊर्जा उस दुध तो मिलती है, विद्युत दुध तो मिलती है। पर अजकल पढ़ी लिखियां मावां जो कि बच्चियां दे नाल बहुत वड्डा धोखा करदियां ने, बहुत वड्डा धोखा। पढ़िया लिखियां मावां कहंदियां ने असीं बच्चे नूं दुध नहीं पिलावांगे, साडा शरीर खराब हो जाएगा। हद हो गई। कहते ने दुध उदों तक पिलाना चाहिए है जदों तक बच्चा खुद ना छड़ दे दुध पीना माँ का, उदों तक। पर माँ की सोचती है छेती छुड़ा दवो, छेती छुड़ा दवो। कहते ने जे बच्चा 9 महीने तो पहला हो जाए तो भी उसकी मौत है। जे माँ ने बहुत छेती ही दुध पिलाना बंद कर दिता, बच्चा उत्थों भी टुट जाएगा। तो माँ ने की किया, थोड़े दिन को दुध पिलाया, बच्चे नूं छुड़ा दिता जबरदस्ती। बच्चा नाभि तो भी उहदे ताल्लुकात खत्म हो गए, माँ के हिरदे नाल भी ताल्लुकात खत्म हो गए। उस तो बाद फिर बच्चा मसां को 2 साल का होंदा है, फिर उन्होंने कहा जाता है प्ले स्कूल दे विच इसनूं पा दो। फिर दिमाग की दौड़ चलती है। फिर ज्यों दिमाग की दौड़ चलती है, फिर सारी जिंदगी दिमाग की ही दौड़ चलती रहती है, सारी जिंदगी। और मनुख विक्षिप्त हो जाता है। कई बार कितने लोग पागल हो जाते हैं।